Hi everyone. So in this video we're going to talk about the timetable that you have to follow in order to crack your UGC NET English in December 2023. देखो भाई, personally I do not prefer reading for both the papers at the same day. For instance, in the morning you're reading for the paper 2 and in the evening you're reading for the paper 1 or vice versa. It's better to cover one unit first. You have to give your mind the clear indication, the clear goals, right? So it does not have to be confused, right? Everything should be clear, crystal clear. For 7 days, I would suggest at a stretch, you read one unit. Let's start here. We have paper 2 and the paper 1, right? Okay. In paper 2, we have 10 units. I'm going to write down all of them here. We have the British literature, abbreviations mainly for now, right? And it covers your all the novels, prose, poetry, drama. Okay. Then we have theory. Third, we have criticism. Fourth, we have English in India and Indian literature. Then we have all other literatures, all other literature in English language. Okay. Then we have here linguistics. This talks about the methods of learning language as a second language, right? Then we have your research methods, and cultural studies. Right? This is our whole syllabus. Right? Now, British literature require 15 days, right? If you have a concise and exam oriented study material, because you do not have to run, scroll screen, accumulating data from various resources, various works, various books. I'm reading R.D. Trivedi sir, I'm reading William J. Long, I'm reading Routledge. Okay, for clearing basic, this is okay, this is fine. But when it comes to crack this examination, they are asking various other topics, right? So it's better to have an exam oriented study material. Okay. Now that I'll provide you. Okay. Now theory, it takes 5 days. Criticism will take 5 days. English in India and Indian literature, it will take 4 days. All other literature will require 5 days. Linguistics, 1 day is enough. Research method, 1 day is enough. Culture studies will take 2 days. So it's a 4 day, 9 days, 13 days, 18 days and 20 days, means it is about your 38 days. This is for the paper 2 if we have exam oriented study material and you going through your previous year's question papers then and doing its revision. It will take up about 2 months in all. Okay. Now here we have our paper 1. Now in paper 1 we have some concept based topics. ठीक है, कुछ में हमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं. कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ऐसे हैं जो फैक्ट पे बेस्ड है. अब कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ड है वो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, वो है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, वो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, जहां पे हम पढ़ते हैं प्रोपोजिशंस के बारे में, जहां पे हम पढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस के बारे में, जहां पे हम पढ़ते हैं इंडियन लॉजिक के बारे में. ये हमारे आगे कॉन्सेप्ट बेस्ड. नाउ देयर सम फैक्ट बेस्ड व्हिच इज योर हायर एजुकेशन, व्हिच इज योर पीपल एंड एनवायरनमेंट, व्हिच इज योर आईसीटी. देन वी हैव योर कम्युनिकेशन टू. नाउ बिसाइड दिस वी हैव द रीजनिंग, वी हैव द मैथ, we have the DI, and then remaining one is your comprehension. Okay, so now these three are your concept based topics. Here you have to devote 2 days for each of these topics.
2-2 दिन आपको लगा के देने पड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? द मोमेंट यू विल बी एबल टू प्रोवाइड द एग्जांपल्स रिगार्डिंग द रिलेटेबल थिंग्स अराउंड यू। जो आपके आसपास की चीजें हैं ना, जब आप उनमें से एग्जांपल्स निकालने लगते हो इन टॉपिक्स को पढ़ के, समझ लेना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो एंड यू कैन गिव एग्जांपल्स अबाउट द लाइफ अराउंड यू, मतलब आपको कॉन्सेप्ट आ गया है। बिकॉज हर एक चीज का हमारे बुक में होना, कॉपी में होना, किताबों में होना, हमें पढ़ाया जाना, उसका मकसद ये है ना कि वो हमारी लाइफ से रिलेट करता है। ठीक है, हमसे चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर इफ इट इज नॉट इंडिकेटिंग टू एनीथिंग अराउंड अस, मींस इट शुड नॉट बी स्टडीड देन। ठीक है, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट, आईसीटी एंड कम्युनिकेशन। यहां पे आपको सिंपली ये करना है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर लगाने हैं और अपने मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी एक अफोर्डेबल सा बढ़िया सा प्लेटफॉर्म देख लो, पता है आपके पास आज के वक्त में गूगल है, जिसकी रेटिंग अच्छी है, जो सबसे अफोर्डेबल है, वहां पे चले जाओ। आपके पास इतना टाइम होता है जिस टाइम पे आप गाने सुनते हो या रील्स देखते हो, उस वक्त में आप ये सब चीजें देख सकते हो ना, तो देखो। ठीक है, इनको कवर करो। 200 क्वेश्चंस इसके लगा दिए, 200 इसके लगा दिए, 200 इसके, 200 इसके। दिस इज ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, बाकी कुछ मॉडल्स होते हैं आपके कम्युनिकेशंस के, आई वुड से स्टडी देम, अंडरस्टैंड देम, निमोनिक्स बनाओ। आई विल आल्सो बी अपलोडिंग वीडियोस ऑन निमोनिक्स हियर। ठीक है, हमने इसके लिए ये करना है। PYQs और मॉक्स इन 4 के लिए। बिसाइड दिस रीजनिंग, मैथ एंड DI के लिए मैं आपको ये कहता हूं, इन DI 4 to 5 आवर्स आर इनफ। 5 आप जो है क्वेश्चन कम से कम आप सॉल्व कीजिए DI के। ठीक है, एंड इफ you have attempted all of those questions accurately, means you got this. Most of the questions are being asked from the ratio. आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, और मैं तो ये बोलता हूं कि हर एक इंसान को, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आप किसी भी आप फील्ड में हो, आपको अपने माइंड में कैलकुलेशंस आपको करते रहना चाहिए। Some people say that they give excuses that when we have the AI, we have calculator, why we should do the calculation in our mind. It is equally proportional to this fact that why we should walk when we have the wheels. भैया आपकी टांगें मजबूत रहेंगी, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, आपकी बॉडी फिट रहेगी। तो जितने चैलेंजेस आप अपने ब्रेन को दोगे उतना अच्छा रहेगा। तो DI कोई भी एक मैथ का कोई क्वेश्चन, कोई भी एक प्रॉब्लम आपको रोज सॉल्व करनी चाहिए। कोई ना कोई टेंशन रोज अपने दिमाग को दिया करो। ठीक है, ताकि वो आपके नए न्यूरोट्रांसमीटर जो है बिल्ड होते रहे, नए से नए कनेक्शन बनते रहे। ठीक है, आप चीप डोपामिन लेके अपने माइंड की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसे आप डिस्ट्रक्ट ना करें, है ना, उसे एनहेंस करें। ओके, तो वो जरूरी है। मैथ और रीजनिंग, ठीक है, प्रैक्टिस ही काम करेगी। 2-2, 3-3 क्वेश्चन रोज के, 1 घंटा इज मोर देन इनफ रीजनिंग और आपके मैथ के लिए, बिकॉज हमें रेगुलरली करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमें कंटिन्यूस थ्रू दिस होल जर्नी ये करते रहना, नहीं। 1 हफ्ते तक आप करो, रोज 2-2, 3-3 क्वेश्चन, यू सॉल्व देम एंड दैट इज मोर देन इनफ। और आपका जो DI है ना, उसमें रेशियो से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको यहां देता भी हूं। ठीक है, there are 100 candidates and there are 5 companies, A, B, C, D. In A company there are 20 employees, in B company there are 30 employees, in C company there are 10 employees, and in D company there are 40 employees. And here they are divided in the 1.3. 1% women and 3% your male are working here, and you have to convert it into numbers. 3 and 1, 4 parts we all have here. If we divide 20 from 4,
हाउ मच डू वी गेट? फॉर ईच पार्ट वी गेट 5, ठीक है। तो यहां तो 5 ही आएगा और यहां पे आ जाएगा आपका 15, ठीक है। जितने यहां पे नंबर दिए होते हैं, जितने यहां पे आपका जो रेशो दी होती है ना, उन दोनों को सम करके आपको इस नंबर से उसे डिवाइड करना होता है। और जब आपने एक पोर्शन का नंबर आपके पास आ गया, ठीक है, तो उसको सम करते रहो। जैसे कि यहां पे आपके पास ये 30 है, ठीक है, और यहां पे आपके पास रेशो दिया गया है कितने का? 2.4 का। इन दोनों को सम आपने किया, कितना हो गया? 6 हो गया। 6 को इससे डिवाइड कर दिया, कितना नंबर आपके पास आता है? 5 ही आता है ना। तो 5 2 जा हो गया 10, 5 4 जा हो गया 20। तो 20 यहां पे मेल है और 10 यहां पे फीमेल है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको डीआई पे ज्यादातर जो है आपको आते हैं। ओके, सो इतना हमारे पास वक्त है, इस तरीके से हमने चीजों को कवर करना है, राइट। आई हैव हेल्प्ड यू आउट विद दिस टाइम टेबल। इन एडिशन टू दिस, आई प्रोवाइड द एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। So if you want to get access to it, you can simply contact me on the given numbers. Soon we'll be back with another helpful video. Till then time, keep watching, keep learning, stay focused, dedicated, do your workout. Health is very important. This is Bhupesh Sharma. Soon I'll be back. Till then time, I'm signing off.